پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں کنفیوژن، کیا واقعی یہ کنفیوژن ہے؟ چونکہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد انٹرا پارٹی انتخابات جماعت کے لیے ایک نیا امتحان بن چکے ہیں۔ پارٹی کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت نے کل ایک بیان دیا اور کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے، لیکن جماعت نے شیر افضل کے بیان کی تردید کی اور کہا کہ اس بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ دوسری جانب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر گوہر خان کو چیئرمین نامزد کر سکتی ہے، لیکن کل جب ہم نے گوہر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا ابھی کوئی فیصلہ اس بارے میں نہیں ہوا کہ کون لیڈ کرے گا پارٹی کو۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محمد ہمایوں احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ پہلے کل کے بیان پر ہی آتے ہیں، کیا شیر افضل مروت صاحب کا بیان آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ وہ جو انہوں نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف دستبردار ہو رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس طرح یہ ہے، میری سمجھ یہ ہے کہ وہاں پہ آپشنز ڈسکس ہوئے ہوں گے، جیسے شیر افضل بتا رہے ہیں کہ بھئی وہاں پہ ان لوگوں نے اس وجہ سے یہ ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ جسٹ ان کیس اگر عمران خان کانٹیسٹ کرتے ہیں تو آبویسلی جو ٹکٹس ہوں گے ان کے اوپر ان کے سگنیچرز ہوں گے، جب ان کے سگنیچرز ہوں گے سو سم پیپل کین یوز دیٹ ایز اے پریٹیکسٹ کہ بھئی جسٹ بیفور دی الیکشنز وہ ان کو نااہل قرار دے کے کسی بھی کیس میں ایک غلط اور صحیح فیصلہ ہی کرنا ہے نا۔ بھئی جیسے ہم نے ابھی دیکھا ہے وہ اس میں توشخانہ کیس میں انہوں نے 5 دن کے اندر مکا کے وہ غلط کر دیا، تو وہ کر کے اور جتنے بھی لوگ ہیں جو اس ٹکٹس کے لحاظ سے کھڑے ہوں گے دے ول ناٹ کنٹیسٹ آن دا پارٹی سیٹ، اوکے ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے تو یہ آپشنز ڈسکس ہوئے ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف جو تردید آئی ہے وہ یہ نہیں آئی کہ یہ آپشنز نہیں ڈسکس ہوئے، انہوں نے کہا ہے ابھی پارٹی کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ناؤ with due respect شیر افضل مروت از اے lovely person، ٹھیک ہے، بڑے دبنگ آدمی ہے، ہر ایک چیز اپنی جگہ ہے، لیکن جب پارٹی کا فیصلہ آتا ہے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ نہیں کرتا، اوکے وہ فیصلہ کرتے ہیں آپ کی ایک کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کور کمیٹی میں آپ کے مختلف جو صوبے ہیں ان کے پریزیڈنٹس ہیں، آپ کے سیکرٹری جنرل ہیں، آپ کا پارٹی کے سینئر لیڈرشپ ہے، وہ 15-20 بندے ان ساری آپشنز کو ڈسکس کرتے ہیں اینڈ دین دے ڈیسائڈ اینڈ the decision has to be said through the right proper channel. Once it is done, maybe جو شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو، ٹھیک ہے، میں چونکہ وہاں فیصلہ بھی نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف آپ نے کہا گوہر صاحب کی بات ہوئی، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ڈسکشن نہیں ہو، انہوں نے کہا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا، جب فیصلہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو۔ اوکے، آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دوز فیکٹس بٹ آئی ایم سیئنگ دیٹ کہ ہر ایک چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے کہنے کا، اگر آپ صحیح بات وقت سے پہلے کہہ دیں تو وہ غلط ہو جاتی ہے، اگر آپ غلط بات صحیح وقت پہ کر دیں تو وہ بھی غلط ہو جاتی ہے۔ کل جو وہ غلط ہوا میرے لحاظ سے وہ کرنا نہیں چاہیے تھا، میرے خیال میں ہی جسٹ جمپڈ the queue، اچھا ان کو وہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے مختلف جو افضل طریقہ ہے جو پارٹی کی، دیکھیں ہوتا کیا ہے اگر ہم ہسٹری سے دیکھیں، جب ٹاپ لیڈر جو مین آپ کا سپہ سالار ہوتا ہے جب وہ آپ کی صفوں میں نہ ہو تو وہاں پہ بعض دفعہ پرابلم ہو جاتی ہے، ایون سیکنڈ تھرڈ فورتھ کے درمیان میں ہم نے اپنے اسلامک ہسٹری میں بھی دیکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد there was a little bit tussle between کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا، تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، یہ نارمل چیزیں ہیں۔ اس لحاظ سے وہ اناؤنسمنٹ جو ان کی طرف سے تھی وہ قبل از وقت، وہ میرے خیال میں اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کا صرف اتنا ہونا چاہیے تھا کہ ہم لوگ جا کے ملے ہیں، ہم نے ڈیفرنٹ آپشنز کے اوپر بعد میں پی ٹی آئی نے بھی اس کی تردید کی، اگر دیکھا جائے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ آپ کی جو ہماری جو لیڈرشپ ہے نا وہاں پہ تھوڑا سا زیادہ ڈسپلنڈ ہونا چاہیے، ایگزیکٹلی، بس دیٹس آل۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب بیرسٹر گوہر کا بھی نام سامنے آ رہا ہے، اب ظاہر ان سے بھی جب کہا جا رہا ہے کہ بات کی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ابھی میں مطلب نہ تو تردید کی ہے نہ ہی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ابھی فیصلہ نہیں ہوا نا۔ دیکھیں وہاں آپ جب کرتے ہیں ہم مختلف آپشنز کرتے ہیں، آپشن نمبر 1، آپشن نمبر 2، آپشن نمبر 3، اب اس کے بعد اب ظاہر ہے اس میں جو آپشن عمران خان نے ٹک کیا ہوگا موسٹ پروبلی وہ آپشن لے کر چلیں گے۔ کب تک کیا جائے گا اب؟ That's up to the party. We don't have much time. Let's put it like this. ٹھیک ہے، تو اعلان آج کل 1-2 دنوں میں آ جانا چاہیے، اصولاً آ جانا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے انٹر پارٹی انتخابات ہونے ہیں، اور انتخابات بھی کہا جا رہا ہے ہفتے یا اتوار کے روز کروائے جائیں گے۔ 20 دن، دیکھیں اب
यहां पे आप क्रेडिट दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनको कहा गया है कि 20 दिन के अंदर अंदर अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लें, और जिन लोगों का काम है वो 90 दिन में नहीं कर सकते। अच्छा, चले बड़ी गहरी बात, लेकिन जैसे पाकिस्तान के इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना एक डिफरेंस तो बड़ा है ना। यू आर पेड टू डू दिस जॉब। अच्छा, if you don't do this job in 20 minutes, why are you being paid for it? Agreed or not? अच्छा सर, इस पर तो अदालत ने भी सीरियस ऑब्जर्वेशन दी है। एग्जैक्टली, सीरियस, दे शुड बी वेरी सीरियस। इसके ऊपर तो देखिए अदालत ने क्या कहा। अदालत ने कहा है कि मार्च के अंदर, देखिए ये याद रखें, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के 10 फरवरी का जो डिसीजन है, ठीक है, उन्होंने क्या है, इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। इलेक्शंस 90 दिन के अंदर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? किन लोगों ने ताउन नहीं किया? आर्टिकल 220, आर्टिकल 224(2), इन दोनों की खिलाफ वर्जी हुई है। राइट। आज हमारे चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ बेंच जो है वो कह रहे कि जो मुशर्रफ के ज़माने के जो लोग थे उनको जिन जिन जजेस ने किया उनकी तो तस्वीरें हटा दो सुप्रीम कोर्ट से। आई एग्री विद हिम कि जिन जिन लोगों ने आइन की जो शिकनी हुई है उसको सपोर्ट किया है। देखिए, मैं एक फैसला लेता हूं, मैं अपनी तरफ से एक फैसला लेता हूं, मैं कहता हूं ये चीज ठीक है, मान लिया कि वो है, लेकिन जहां पे आइन आपको दो जगहों पे, एक 224(2) में वो कहते हैं विद इन 90 डेज, राइट, लेकिन दूसरी जगह पे वो कहता है कि नॉट लेटर देन 90 डेज। मेरे ख्याल में ये आर्टिकल 48(5) है, वो कहता है नॉट लेटर देन, या 55(1) है, वो कहता है नॉट लेटर देन 90 डेज। सो वो उसकी जो हद है वो भी मुकर्रर कर देता है। अच्छा, इसमें जो प्री टेक्स्ट है जिसके बेसिस पे ये लोग कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हल्का बंदी। अच्छा, हल्का बंदी कब चेंज होती है? वाई 10 ईयर्स? 10 ईयर्स में अगर आप देखें तो आपका तकरीबन 4 से 5 करोड़ नया वोटर आ जाता है। ऐसे ही है। जब 4 से 5 नया वोटर आ जाता है और आपकी अर्बनाइजेशन हो रही है तो आपकी हदें चेंज होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, हर साल क्या होता है? हर साल इलेक्शन से पहले या हर ज़िमनी इलेक्शन से पहले भी वो कहते हैं कि आप अपना शनाख्ती कार्ड डाल के 8200 या 8300 पे कर ले, वो आपको बता देता है कि आपका वोट कहाँ है, मतलब आपको वोट चेंज हो सकता है। वो क्या होती है? वो हल्का बंदी होती है हर इलेक्शंस, क्योंकि हर रोज नए लोग रजिस्टर हो रहे हैं, वो तो हो रहे हैं ना। अब जब वो हो रहे हैं तो आपकी छोटी छोटी हल्का बंदियां चेंज हो रही होती है। इन अदर वर्ड्स, छोटा मोटा होता है। 10 साल बाद एक मेजर शिफ्ट आती है, आपके इतने ज्यादा चेंज हो जाते हैं कि आपको नंबर ऑफ सीट्स बदलनी पड़ती है। एग्रीड? ठीक है। तो ये जो 5 साल के अंदर हुआ है, 2017 के बाद 2022 में हुआ है, 5 साल हुआ है, 5 साल में आपको 2-2.5 करोड़ है। इसमें आपकी सीटें बदली नहीं है, लेकिन इट इज एट द कस्प। ठीक है, ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, अब वही वाली बात कि हफ्ते के एतवार को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं पीटीआई के। अगर पार्टी ने कहा तो हो जाएंगे, अगर पार्टी ने नहीं कहा तो नहीं होंगे। हमारे पास 2 ऑप्शंस है ना। हाँ, अपील भी क्योंकि आप लोग कर रहे हैं, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, आइदर वी चैलेंज दिस और हम इसको इलेक्शंस करवा दें। आप मुझसे पूछे, आई डू बोथ। ओके, चैलेंज भी करेंगे पार्टी भी एक करे, नहीं शायद पार्टी भी, आप मुझसे, मैं अपनी जाती राय दे रहा हूं ना। मैं दोनों इसलिए करूंगा कि मैं इस चीज को गलत समझता हूं, इस चीज को बायस फैसला समझता हूं, ठीक है? क्योंकि बाकी लोगों को आप लोग कुछ नहीं कह रहे, व्हाई ओनली पीटीआई सिंगल आउट, तो मैं चैलेंज करूंगा। बट एट द सेम टाइम, बिकॉज माय सिंबल इज एट स्टेक, तो इसलिए आप दूसरा काम भी करेंगे। अब जाती राय आपकी किसी और मामले पे लेता हूं। अब मैं, हाँ जी, जाती राय दीजिए कि अगर ये डिसाइड होता है कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ नहीं रहे इमरान खान साहब और किसी और को लीड करना है, आपकी नजर में, आपकी राय में कौन है वो, कौन हो सकता है? देखिए, लेट्स पुट लाइक दिस, इट इज इमैटेरियल। इट इज इमैटेरियल, नो डाउट, ठीक है, इट इज इमैटेरियल। अगर सूरज को आप हटा दें और उसकी जगह बड़े बड़े शीशे लगा दें, रोशनी तो सूरज की है ना। अग्रीड, ठीक है, रोशनी तो सूरज की है। देखिए, उस बंदे की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो उस चांद की तरह है जो उस सूरज की रोशनी को इसको और आसान मैं कर देता हूं सर आपके लिए कि जिस वक्त नवाज शरीफ नाअहल हुए उसके बाद भी फैसले नवाज शरीफ साहब ने किए। नहीं, देखिए उससे वर्स, अच्छा, उससे ज्यादा वर्स ये बात है जो आप नवाज शरीफ साहब की वो जो बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा गलत चीज क्या हो सकती है? पार्टी के फैसले नहीं, एक प्राइम मिनिस्टर हर छोटे काम के लिए लंदन जा रहा है फैसला लेने के लिए।
चले वो दूसरी बात हो जाएगी। नहीं, दूसरी बात नहीं हो जाएगी सर जी, आप इसी तरफ जाए ना। अच्छा, देखिए, let's do it like this. I am sitting in London. You are the Prime Minister. आपको कहा जाता है यार उस कैमरे को उधर कर दो, आप लंदन आते हैं, सर जी मैं कैमरा उधर कर दूं, वो कहता है नहीं जी कैमरा उतना उधर ना करो, थोड़ा उधर कर लो। आपने खुद कहा कि इमैटेरियल है, अगर आपकी पार्टी के लिए बात इमैटेरियल है तो वो नून लीग के लिए भी इमैटेरियल हो सकती है। और गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, विद इन द पार्टी 100 बिस्मिल्लाह, मियां नवाज शरीफ के अलावा किसी की मत सुने, वोट उसके है, रोशनी उसकी है। गवर्नमेंट गिव मी अ ब्रेक। अग्रीड। अब मेरा सवाल वहीं का वहीं है, भले इमैटेरियल है ये, लेकिन कौन? कोई भी हो सकता है। आपकी नजर में सबसे पहली ऑप्शन मेरी क्या नजर में होगी? ये सारी ऑप्शंस टेबल पे मेरी रख देते नजर में अगर आप मुझसे पूछे ना, आज के सिनेरियो में मैं देखता हूं कि यार अगर डॉक्टर हुमायूं को मैं बनाता हूं तो डॉक्टर हुमायूं ऐसे पोजीशन पे है कि जहां पे अगर इसके ऊपर प्रेशर आया तो हो सकता है ये डगमगा जाए। ओके, लेकिन फलाना बैरिस्टर, फलाना लॉयर, फलाना एडवोकेट, फलाना वो है, उनके ऊपर प्रेशर्स नहीं आ रहे। इसका मतलब एक लॉयर ही बनेगा। वक्त का तकाजा मैं ये समझता हूं कि अगर लॉयर बन जाता है तो फिर हमारा वो जो प्रेशर सस्टेनेबिलिटी है वो बेहतर हो जाए। बैरिस्टर गौहर एक अच्छी ऑप्शन है। देखिए बैरिस्टर गौहर है, मेरे ख्याल में हामिद खान बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके, ही इज अ वेरी सीनियर लीडर और पार्टी के वो कारकुन भी रहा है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा पर्सनल वोट जो है ना हामिद खान की तरफ जाएगा, क्योंकि मैंने उनको पार्टी में काम करते हुए देखा है और बड़े अरसे से देखा। और अगर ये होती है बात हामिद खान साहब से मुताल्लिक, तो जितने इस वक्त तरीके इंसाफ से जुड़े हुए हैं वो इस मामले को सपोर्ट करेंगे या कोई डिवाइड? देखिए पॉलिटिक्स में इट इज पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँगा या मैं बहुत बुरा इंसान हूँगा, वन वे और अनदर वे। मुझे चाहने वाले भी होंगे, मेरे से डिसएग्री करने वाले भी होंगे। तो चाहे हामिद, देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। डू यू नो मैंने पीटीआई के अंदर इमरान खान को सीढ़ी पे खड़े होते हुए और छोटे से छोटे वर्कर को उनके ऊपर यूं उंगली उठाते हुए देखा है। किसी और पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है को इमरान अपने जो प्रेसिडेंट है, जो चेयरमैन है, उसको यूं करके कि तुम्हारी ये गलती है। किसने किया वैसे? ये हर जगह पे हुआ है। हमारे ये 2010 से 9 से 8 से मैं देखता आ रहा हूँ ये सारी चीजें हो रही हैं। उन्होंने जहां लेकिन जो पार्टी छोड़ता है वो कहता है कि वो तो सुनते ही नहीं थे बात। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताता हूं, एंड यू कैन कंफर्म दिस थिंग फ्रॉम द लंदन चैप्टर। ओके, मैं इंटरनेशनल चैप्टर्स का सेक्रेटरी था, ठीक है, एन इलेक्टेड सेक्रेटरी, राइट। मैं वहां पे इलेक्शंस कराता था, ठीक है। इलेक्शंस कराया, मुझे पता चला कि एक ग्रुप जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, उन लोगों ने बाज जगहों पे, हमारा ये था कि आप वोट खरीद नहीं सकते हो, ठीक है। हम लोग कीमे वाले नान वाली सियासत नहीं करना चाहते थे। तो हमें पता चला कि वहां पे थोड़े से कीमे वाले नान चले। अच्छा, ठीक है। तो हमने इन्वेस्टिगेट किया। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि हाँ कीमे वाले नान थे। तो मैंने उस ग्रुप को मैंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोग ये इलेक्शंस में नहीं आ सकते। मुझे अच्छा, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे, तो मुझे खान साहब ने बुला लिया। उन्होंने कहा यार टोटल 2000 बंदे के अंदर इलेक्शंस करा रहे हो तो नज़रअंदाज कर दो। मैं आपको लिटरली बात बताता हूँ। मैंने कहा कि इमरान भाई बात ये है, ये सबूत है मेरे पास, ये वेरिफिकेशंस हैं, आप अगर इनको चेंज कराना चाहते, वापस लाना चाहते, मैं रिजाइन दे देता हूं, आप इनको वापस ले आओ, लेकिन जब तक मैं इस सीट पर हूं मैं ये होने नहीं दूंगा। Guess what? He kept quiet for 2 seconds and then he said, ठीक है डॉक्टर साहब, फिर जो आप बेहतर समझते वो कर लो। उसके बाद मैंने कहा इमरान भाई, मेरे मामले में आप ना पड़े, मैं कभी आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। अच्छा, but that's all and he agreed to me। अच्छा, इतने सुनते थे? और मुझे अभी 2 साल 3 साल हुए थे पार्टी में आए हुए। अच्छा, तो वो जो तमाम लोग कह रहे हैं कि वो सुनते ही नहीं थे, उनकी कोई हैसियत नहीं थी, खान साहब सिर्फ अपनी करते थे और किसी भी रहनुमा को उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो वो सब गलत कह रहे हैं। देखिए इस तरह होता है, आप इधर बैठी हुई हैं, मैं आपके साथ, और आप पोजीशन पे बैठी हुई हैं, मैं आपसे आर्ग्यू करता हूं, मैं अपनी बायसिज्म लेकर आ रहा हूं आपके पास, और आप देख रहे हैं कि यार हुमायूं बायस्ड है, ये मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहा, आप मेरी बात नहीं मानोगे। जब आप मेरी बात नहीं मानोगे, मैं क्या कहूंगा बाहर जाके? मैं जाके ये तो नहीं कहूंगा ना यार मैं उसके खिलाफ ये बातें कर रहा था। मेजॉरिटी लोग ऐसे थे जिनमें कन्विंसिंग पार्ट थी, नहीं कन्विंस नहीं कर सके। इतना मुश्किल था चेयरमैन पीटीआई को कन्विंस करना, इतना मुश्किल काम है? नहीं,
सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम, प्रोवाइडेड यू गिव हिम अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, ही इज वन पर्सन जो आर्ग्यूमेंट्स पे, एंड ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। वो जब आप ये देख लें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जो भी बाहर गए, जब भी गए, कोई उस कोने में खड़ा होता है, कोई उस कोने में खड़ा होता है, लेकिन उसका ऑरा है, जब वो जाता है ही बिकम्स द सेंटर स्टेज। मतलब प्यूटिन जैसे बंदे, डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे, दे आर ओवरशैडोड बाय हिज पर्सनालिटी, हिज ऑरा, हिज एवरीथिंग। वो कहीं चला जाए, ही बिकम्स द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अल्लाह ताला की उनके ऊपर एक बहुत बड़ी फजल है, और वजह क्या है? एक शख्स जो अपनी जात की हैसियत से लाखों लोगों का वसीला बन गया है कि उनके बच्चों का फ्री इलाज करा ले, और लोग उनको दिल से दुआएं देते हैं, क्या अल्लाह ताला उसकी दुआएं नहीं सुनेंगे? अच्छा सर, एक सवाल वो जो था शुएब का, दोबारा से रिपीट करेंगे, उसका जवाब दे दें कि हामिद साहब के नाम पर इत्तेफाक होता है या गौहर साहब के नाम पे होता है, जो भी सिलेक्ट किया जाएगा चेयरमैन पीटीआई के ओहदे के ऊपर, तो पार्टी में कोई डिवाइड नहीं आएगा, सब उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, उस फैसले को? आपने कहा कि पसंद नापसंद हर किसी की अपनी है, लेकिन इस वक्त पार्टी के अंदर की बात हो रही है, विद इन पार्टी, कोई आउटसाइडर्स की बात नहीं हो रही है। विद इन पार्टी मेरा ये ख्याल है कि अगर इस सिचुएशन में अगर किसी की नॉमिनेशन आती है कि यार मैं इसको आप करो, और उसको बैकिंग आती है इमरान खान की, मैं हो सकता है मैं उससे एग्री ना करता हूं, ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में मैं उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि दिस इज अ मोमेंट वेयर आई नीड टू बी लिटिल बिट मोर डिसिप्लिन्ड। लेकिन हाँ, मैं शायद उससे एग्री ना करूं, मैं उस शख्स से एज इन पर्सन मैं आपकी बजाय हो सकता है उनको ज्यादा चाहता हूं कि वो बने, लेकिन बिकॉज आपके पीछे वो शख्स है जो आपको बैक कर रहा है, तो मैं इस वक्त इस सिचुएशन में मैं आपको ना चाहते हुए भी मैं आपको सपोर्ट करूं। लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन। हम लोग वो तो नहीं है ना कि आपको किया तो बिला मुकाबला, भाई पीछे अगली तरफ कोई है ही नहीं। अगली तरफ इसलिए नहीं है कि वो सारे वो एक हुक्मरान खानदान है और ये सारे महकूम हैं, और क्या वो हुक्मरान के सामने उनके गुलाम कैसे खड़े हो सकते? यही वजह है पीटीआई में ना गुलाम है कोई, ना हुक्मरान है कोई। पीटीआई में हाँ एक लीडर है और एक उसके साथ उसके कोलीग्स हैं। यही वजह है कि अलीमा खान साहिबा का नाम सामने नहीं आ रहा, कि वरना यही टैग पीटीआई पर लग जाएगा। खानदानी सियासत। अगर मुझसे सवाल पूछा गया था कि अगर उनकी बहनें या उनकी बेगम या कोई इस किस्म का आ जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा, मैंने कहा कि फिर मैं पीटीआई में नहीं हूँगा। अच्छा, ओके। इन प्रिंसिपल आई जॉइन पीटीआई कि इसमें खानदानी सियासत नहीं है, जमहूरियत है, जमहूरियत है। हाँ, एक ओवरशैडोइंग पर्सनालिटी है, लेकिन उसी पर्सनालिटी की वजह से तो मैं आया हूं, उसी पर्सनालिटी ने तो मुझे मुतासिर किया था, उसी पर्सनालिटी को मैं फॉलो कर लूं, बट दैट डजंट मीन उस पर्सनालिटी की वजह से मैं उनके बच्चों को फॉलो करना शुरू कर दूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माई कोलीग्स, जैसे आप बाकी उसमें देख ले, बड़े बड़े बुर्ज हैं, हाथ बांध के खड़े हैं। अरे अगला 25 साल का बच्चा नहीं है, वो शायद खाकान अब्बासी को जाके या एतजाज एहसन को जाके पॉलिटिक्स सिखाएगा। खुदा का खौफ करे, ये मुल्क है, ये क्या है? अच्छा, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, हम हुक्मरान खानदान, इससे ज्यादा फिरौनियत आप कहां देखते हैं? हम हुक्मरान खानदान करके देख लो थोड़ा सा जरा, अगर हमारे पास वो जो राइट टू इंफॉर्मेशन आ जाए, आप टेक्स्ट टू ये करके देख लो, पिछले 30 साल का निकाल के देख लो, 40 साल का निकाल के देख लो, आपको पता चल जाए कि इनकी ग्रोथ कितनी हुई है, इन्होंने टैक्स कितना दिया है, कंपनीज के लिहाज से हो चुका है। ये 22 खानदान में थे ही नहीं। जो बिलियनेयर होता है ना, जो मिलियनेयर होता है, उसके बच्चे गुल्ली डंडा नहीं खेलते। मियां नवाज शरीफ की एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि हम वो क्या गवाल मंडी के वहां पे होते थे और उस जगह पे हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, ये करते थे। बिलियनियर के बच्चे 22 खानदानों के किसी बच्चे ने गुल्ली डंडा नहीं खेला। हम सवाल है, हमारे साथ बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।